Mr. A holds rupees 6 lakhs in East African gold stock. Bullish as he is on gold mining. यानी उनको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा of a security in which he has made investment and dealing in the gold. He requires, highlight the portion, an absolute assurance that at least rupees 5 lakhs will be available in 6 months to fund an expedition. Describe 2 ways for Mr. A to achieve this goal. There is an active market for put and there is an active market for call on East African gold stock, and the rate of interest is 12.4% per year. I request you to give answer for the question in the chat box. I just explained to you on the question. The question is providing the information like this. Let us assume that today's date is 1st of January and today Mr. A is holding, let us say, X number of shares. At the price Y, and multiplication of both of them is an amount of rupees 6 lakhs. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमारे पास से जो भी स्टॉक है उसका मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है. आज से 6 महीने के बाद मिस्टर ए को ऐसा एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहिए दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज एटलीस्ट 5 lakhs. यानी कि उनके पास आज से 6 महीने के बाद एटलीस्ट 5 लाख रुपए होने चाहिए. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से ही इज बुलिश, यानी उनको लग रहा है कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी बढ़ेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 12.4%. The question says that there is an active market for call option, there is an active market for put option. तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से 6 महीने के बाद एटलीस्ट उनके पास 5 लाख रुपए हो. Let us have a discussion of the first method. First method में हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं, that say you may buy call, you may buy put. For such number of shares so that exercise price is rupees 5 lakhs. यानी आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बाय पुट ऑप्शन फॉर सच नंबर ऑफ शेयर्स कि जिसका एक्सरसाइज प्राइस 5 लाख रुपए हो. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. देखो, जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर होगा यानी कि आज से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होगा कि जो स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका मार्केट वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है और 5 लाख से कम भी हो सकता है. अगर आपका स्टॉक का वैल्यू 5 लाख से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और हमको क्या मिलेगा, एटलीस्ट 5 लाख रुपए मिलेंगे. And if at all the spot price of the equity share is greater than 5 lakhs, then in that case you don't have to bother. You have to sell the stock in the market for an amount of rupees 5 lakhs. You have to sell the stock in the market at the spot value. और spot value 5 लाख से already ज़्यादा ही है. This is the way say we can have the one strategy by which say you will be having say at least an amount of 5 lakhs. That is purchase put option for an exercise price say for rupees 5 lakhs. Friends, over here the language of the question speaks that he is bullish. If it is that is say bullish, then in that case basically उनको कोई डरने का ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा. Then in that case he will be able to get a market value which is greater than 6 lakhs. अभी तो सिर्फ 5 लाख ही उनको चाहिए. बट स्टिल वी अंडरस्टैंड दैट से द स्टॉक मार्केट इज एब्सोल्युटली अनसर्टन. वो मिस्टर ए को भी पता है.
इसलिए उनको 6 महीने के बाद जो पैसा चाहिए, फॉर दैट से ही रिक्वायर्स एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसलिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से ही विल एंटर इनटू द पुट ऑप्शन ओवर हियर एंड अंडरस्टैंड केयरफुली दैट से इस बार हमको स्पेक्यूलेटिव गेन नहीं करना है। वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर परचेसिंग ऑफ द पुट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी स्पेक्यूलेटिव गेन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से जब प्राइस गिरने वाला है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। पर हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय इसलिए कर रहे हैं बिकॉज से वी वांट टू हेज अवर सेल्फ, सो द एंटायर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। So I request you to write down answer. First point, in this question, from Mr. A point of view, we have to decide what strategy should be adopted so that Mr. A will have at least rupees 5 lakhs after 6 months. Second point, he is expecting price of security to increase, comma, yet there is always an uncertainty in stock market, full stop. Now write down method number 1, उसमें लिखो Mr. A should buy put for such exercise price so that it is rupees 5 lakhs. उसी में लिखो आगे after 6 months if value of those shares is less than rupees 5 lakhs, comma, then exercise put option otherwise sell shares
in spot market. This is what we understand. Please draw this diagram. On x-axis I am taking value of shares. Of course जिसके लिए हमने put option खरीदा है, and this is what say we understand is the value of portfolio. तो वैल्यू ऑफ द शेयर्स 5 लाख से कम है तो आपको एटलीस्ट 5 लाख मिलेगा, और अगर वैल्यू ऑफ द शेयर्स 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्पॉट वैल्यू मिलेगा. I want you to put the second method in the chat box to achieve this objective. फ्रेंड्स सेकेंड मेथड में हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि today's date is 1st of January, let us assume that हमको फंड्स 6 महीने के बाद चाहिए. कितना चाहिए? वी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 5 lakhs. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.4% है. सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 लाख रुपए हमको 6 महीने के बाद चाहिए उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 5 lakhs डिवाइडेड बाय 1.062, क्योंकि 12.4% पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना, ऐसा करके हम लोग से उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. Of course its value is going to be less than 5 lakhs. Suppose for example it comes to 4,90,000. ऐसे मैं लिख रहा हूँ अभी 4,90,000. तो मिस्टर ए को क्या बोल सकते हैं, देखो आपके पास अभी 6 लाख रुपए है, हाँ है, उसमें से आप 4,90,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी बेच दो, ये जो पैसा है वो आप बैंक में इन्वेस्ट कर दो. सो वहाँ पे तो आपको पूरा अश्योरेंस है कि आपका वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा. एंड वी अंडरस्टैंड दैट से बाकी का पैसा आप स्टॉक मार्केट में रखो, उसका वैल्यू 6 महीने के बाद जो भी है, हावेवर यू विल डेफिनेटली गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 lakhs आफ्टर 6 months. चलो राइट ऑन हेडिंग मेथड नंबर 2. उस पे लिखो we can advise Mr. A that he may sell certain portion of investment today, comma, and that amount can be invested at the rate of 12.4% for 6 months. Full stop. With paragraph write down. Working note for calculating amount of investment to be made today. उस पे लिखो अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 plus 1 into rate of interest at 12.4% into 6 divided by 12. हमको कितना चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए, divided by 1.062. That is the way we can compute the amount required to be invested today. $470,810.
That is the way the amount to be invested today will be calculated. तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेडर को आज से 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए चाहिए. उनके जो शेयर्स का आज का वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है. सो व्हाट ही कैन डू, फर्स्ट इज ही कैन एंटर इनटू परचेसिंग ऑफ द पुट ऑप्शन, जिसमें क्या होगा, से ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 5 लाख. तो अगर 6 महीने के बाद प्राइस 5 लाख से ऊपर है तो हमको स्पॉट वैल्यू मिलेगा, 5 लाख से नीचे है तो एटलीस्ट 5 लाख मिलेगा. सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमको 6 महीने के बाद चाहिए उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा. उसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 470,810. क्या बोलेंगे दैट इतने अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आज आप बेच दो, यू इन्वेस्ट द सेम एट 12.4% फॉर 6 मंथ्स. बाकी का शेयर्स का वैल्यू 6 महीने के बाद कुछ भी हो, यू विल हैव एटलीस्ट 5 लाख रुपीज आफ्टर 6 months. This is what we understand.